اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، دشمنان محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام 1400 سال سے ہم شیعان علی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مارا تھا، اس لیے سیدہ زینب کی ہمیں بد دعا ہے کہ ہم تا حشر روتے رہیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر کوفی رونے لگ گئے۔ سامعین، یزید کے وکیل عطا اللہ بندیالوی کا اس بارے میں ایک بیان ملاحظہ کیجیے۔ حضرت زین العابدین کی بات ذرا غور سے سنیے گا جی۔ بیمار ہیں، اونٹ پر ہیں، کجاوے میں، کوفے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ کوفے کے لوگ رو رہے ہیں، کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں، نوح کر رہی ہیں۔ زین العابدین نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین پر رو رہے ہیں، ان کے انتقال اور شہادت پہ رو رہے ہیں۔ تو زین العابدین نے کہا فمن قتلہ اذن ومن قتلہ اذن، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے؟ فمن قتلنا غیرہم، ان کے سوا ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو زین العابدین نے کیا کہا کہ میرے بابا کے قاتل کون ہیں؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ زین العابدین کہہ رہے ہیں اگر کوفے کے لوگ رو رہے ہیں فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے سوا ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں سیدہ زینب، کہو یا رضی اللہ تعالی، سیدہ زینب، ان کا بیان سنو جی۔ کوفہ کے لوگ روتے پیٹتے آنسو بہاتے بازاروں میں آئے، عورتوں نے نوحہ کیا، تو زینب نے خطبہ دیا، سارا قافلہ ختم بھی ہو جاتا تو حضرت علی کی بیٹی خطبہ دینے کے لیے کبھی میرا دل نہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ہو، خطبہ دے رہی ہو، حضرت علی کی بیٹی ہو، لوگوں کو خطاب کر رہی ہو، کہتی ہو کوفیوں اور مکارو تم ہم پر روتے ہو، حالانکہ تم ہی ہمارے قاتل ہو، واللہ لازم ہے کہ تم بہت روو، لازم ہے کہ تم بہت روو، کم ہنسو۔ حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کوفیوں دھوکے بازو، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے قتل کو حلال سمجھا، ہمارا مال غنیمت سمجھ کے لوٹا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا حضرت علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کیا کہا؟ میرے دادا علی کو بھی قتل کس نے کیا؟ کوفیوں نے کیا۔ تو سامعین، انہوں نے سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے خطبہ پر کوفیوں کا رونا تو بتایا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر ان کے حبداروں کا، ان کے چاہنے والوں کا رونا آپ کو نہیں بتایا۔ سامعین، مولوی محمد شفیع اوکاڑوی جو فاضل جلیل خطیب پاکستان تھے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب شام کربلا جو ضیاء القرآن پبلیکیشنز اردو بازار لاہور سے چھپی ہے کہ صفحہ 210 میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے انتہائی درد اور کرب کے ساتھ لاش حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر روتے ہوئے فرمایا، یا محمد آہو، یا محمد آہو، آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں اعضاء بریدہ خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ یا محمد آہو، آپ کی لڑکیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دل دوز فریاد سن کر دوست دشمن سب رو دیے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا کے مرثیہ پر نہ صرف دوست بلکہ دشمن رو دیے۔ تو ہم عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دوستوں میں شامل ہیں
इसलिए रोते हैं। सामीन, शफी ओकाड़वी ने किताब अल बदाया वल नहाया, जिसे तारीख इब्न कसीर भी कहते हैं, और तारीख तबरी का हवाला दिया है। और सामीन, एक बार मशहूर मनाजर शिया अज़र अब्बास हैदरी अल्लाहु मकामहू का गैर शिया से मनाजरा हो रहा था, तो मनाजरे के दौरान मनाजिर ने कहा कि यजीद रोता था, आप भी रोते हैं। तो हाजिर दिमाग अज़र अब्बास हैदरी अल्लाहु मकामहू ने जवाब दिया कि यजीद की दाढ़ी भी थी, आपकी दाढ़ी भी है। शरह फ़िक़्ह अकबर में लिखा हुआ है कि यजीद ने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा। तो क्या आपने यजीद की सुन्नत पर दाढ़ी रखी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर हम भी यही कहते हैं कि हमने भी रसूल की सुन्नत पे दाढ़ी रखी है और आपने भी रसूल की सुन्नत पे दाढ़ी रखी है। अब यजीद चाहे दाढ़ी रखता रहे, मगर हम तो सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं। और ये तो मशहूर बात है कि हज़रत मूसा ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली थी, तो क्या आपने फ़िरौन से मुतासिर होकर दाढ़ी रखी है? सिख भी दाढ़ी रखते हैं, तो क्या आप सिखों से मुतासिर होकर दाढ़ी रखते हैं? नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दाढ़ी रखते हैं। तो सामीन, अब मैं कहता हूँ, चाहे यजीद और कूफी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पर रोते हों, मगर हम तो सुन्नत रसूल पर रोते हैं। पर रसूल ने गिरिया किया है, बीबी उम्मे सलमा सलवातो सलामुल्लाह अलैहा ने गिरिया किया है, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिरिया किया है। हम इन सब की सुन्नत पर अमल करते हैं। और सामीन, यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फसीह बलीग खुतबा से खौफजदा होकर मौज़न को अजान देने का हुक्म दिया। आप भी अजानें देते हैं, क्या आप यजीद की सुन्नत पर अमल करते हैं या हुसैन के नाना की सुन्नत पर अमल करते हैं? ये देखिए, आपके फाजिल अलूम इस्लामिया मौलवी कारी मोहम्मद अब्दुल तव्वाब कादरी हबीबी ने अपनी किताब करबला के बाद, जो शब्बीर ब्रदर्स उर्दू बाजार लाहौर से छपी है, के सफ़ा 60 में लिखा है कि हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इस खुतबा का, यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबे का ये असर हुआ कि लोग चीख चीख कर रोने लगे और इस कदर हिजान बढ़ा कि यजीद ने घबराकर मौज़न को अजान देने का इशारा किया। मौज़न ने अजान देनी शुरू की। जब मौज़न ने अल्लाहु अकबर कहा तो इमाम ने जवाब में फरमाया, अल्लाहु अकबर फौका कुल्ले कबीरा, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मौज़न ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मौज़न ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मौज़न, तुझे कसम है खुदावंद कद्दूस की, जरा चुप रह। जब मौज़न खामोश हो गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद से कहा कि ए यजीद, सच बता, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना हैं या तेरे नाना? अगर तू कहे कि मेरे नाना हैं तो तूने सच कहा, और अगर तू कहे कि तेरे नाना हैं तो तू झूठा है। तो यजीद ने जवाब दिया कि हाँ, बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही के नाना हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जालिम, जब तू ये सब जानता था तो क्यों तूने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद को कत्ल किया, और क्यों उनके अहलो अयाल को, उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को, उनके कुंबे को गालियां दी और उनके हरम मोहतरम की बेइज्जती की? ये सुनकर यजीद बिल्कुल ही खामोश हो गया और अहले मस्जिद चीखे मार मार कर रोने लगे, और आलम यह हो गया कि यजीद को अपनी जान के लाले पड़ गए। और सामीन, यजीद अपनी औरतों को पर्दा भी करवाता था, जिसकी दलील यह है कि बीबी ज़ैनब सलवातो सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि क्या तेरी गैरत गवारा करती है कि तू अपनी औरतों को तो पर्दे में रखे और आले रसूल की औरतें बेपर्दा हों? तो हमारा आपसे सवाल है कि यजीद अपनी औरतों को पर्दा करवाता था, आप भी अपनी औरतों को पर्दा करवाते हैं। क्या आप सुन्नत यजीद पर अमल करते हैं या सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं? ये देखिए, किताब हुसैन अज़-ज़बान हुसैन सफ़ा 329 में लिखा है कि सैयदा ज़ैनब सलवातो सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, यब्नत तलका, ए तलका के बेटे, ए आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लोंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को सर बरहना दर बदर फिरा रहा है? और सामीन, यही बात रियाजुल कुद्स जिल्द 2 सफ़ा 627 में लिखी हुई है। और सामीन, यजीद आयात कुरानी से मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुकाबले में इस्तदलाल करता था। आप भी आयात कुरानी से इस्तदलाल करते हैं, तो क्या आप यजीद की सुन्नत पर अमल करते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं? शेख अब्दुल वाहिद खैयारी ने एक किताब लिखी है इमाम हुसैन, जिसका उर्दू तर्जमा हुआ है अल इमामुल हुसैन कुरान, सुन्नत और तारीख के आईने में, और ये सिंध पाकिस्तान से छपी है। इसमें लिखा है कि यजीद ने अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि तेरे वालिद यानी अली ने मेरे साथ कता रहमी की और मेरे हक में तगाफुल बरता और मेरी हुकूमत छीनना चाही। अल्लाह ने उसका जो हशर किया वो तूने देख ही लिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया
کہ ما असाबुन मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन, कि कोई मुसीबत ना दुनिया में आती है और ना खास तुम्हारी जानों में मगर वो किताब में लिखी होती है। तो यजीद ने अपने बेटे खालिद से कहा कि ज़ैनुल आबिदीन को जवाब दो, मगर उसे कुछ समझ में ना आया कि क्या जवाब दूं। तो यजीद बोला, यूं कहो, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फीमा कसबत ऐदिकुम व याफू अन कसीर, यानी तुमको जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों के किए हुए कामों से है और बहुत से तो दरगुजर ही कर देते हैं। सामीन, इसने अल बदाया वल नहाया यानी तारीख इब्ने कसीर का हवाला दिया है। सामीन, यही रवायत हाफिज अब्दुल वहीद हनफी ने हजरत हुसैन सीरत व शहादत जो मरहबा अकेडमी मियाँ वाली से छपी है के सफ़ा 309 में नकल हुई है। और सामीन, यही रवायत शाम करबला सफ़ा 228 में भी नकल हुई है। और सामीन, रियाजुल कुद्स जिल्द 2 सफ़ा 727 में लिखा है कि जब असीरान अहले बैत अतहार को शाम में रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया और अहले शाम को ये अच्छी तरह मालूम हो गया कि असीरान करबो बला खारजी नहीं बल्कि औलाद पैगम्बर इस्लाम है और इन असीरों में फातिमा व अली की बेटियां कैदी हैं, तो लोगों में एक हिजान पैदा हो गया और यजीद के खिलाफ तान और तंज की गुफ्तगू होने लगी। यजीद ने बहुत कोशिश की कि इसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ दब जाए, इसलिए यजीद ने यह प्रोपेगंडा शुरू किया कि इब्ने ज़ियाद मलून ने कत्ल हुसैन में जल्दी की है, खुदा उस पर लानत करे। फिर यजीद ने हुक्म दिया कि कुरान के अलग अलग जुज़्व बनाकर अलहदा अलहदा पार्ट बनाकर अहले बाजार को दिए जाएं ताकि वो लोग कुरान की तलावत में मशगूल रहें और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तबसरा करने से बाज रहें ताकि यजीद निशाने तशनी न बने। चुनाचा इसी दिन से कुरान के 30 पारे कर दिए गए। तो अब हमारा आपसे सवाल है कि यजीद लोगों को कुरान पढ़वाता था और आप लोग भी जिक्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों को फेरने के लिए, उनकी अटेंशंस को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को कुरान की तलावत का दर्स देते हैं, तो क्या आप यजीदी हैं या सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं? सामीन, अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की याद में रोने वालों के खिलाफ प्रोपेगंडा करने वालों को हिदायत नसीब हो और हकीकत अज़हर मिनश शम्स हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।